حضور کا مزار یہاں تشریف لانا ہے تو انبیاء ادھر کا رخ کر رہے ہیں تو جہاں مصطفیٰ کا جسد انور ہے، مزار پاک ہے، قبر انور ہے، وہاں پر 70,000 فرشتے دن کو آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں۔ ایک اور بات بھی بتا دوں، ایک کعبہ بیت المقدس ہے، ایک خانہ کعبہ ہے بیت اللہ شریف ہے، اور عرشوں کا کعبہ بیت المعمور ہے۔ یہ کعبہ بھی افضل، وہ کعبہ بھی افضل، بیت المعمور بھی افضل۔ بیت المعمور جو عرشوں کا قبلہ ہے، جہاں حور و غلمان، جہاں روح فرشتے یہ سارے طواف کرتے ہیں، انہی میں سے 70,000 روزانہ دن کو اور 70,000 رات کو حضور کے دربار پر، اور جو ایک دفعہ آتے ہیں فرمایا قیامت تک ترسیں گے، تڑپیں گے کہ مولا دوبارہ باری مل جائے، لیکن سرکار دے عاشق نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے۔ حضور کی رحمت نہیں، تصور کریں حضور کی رحمت کو، یہ کس کا صدقہ ہے؟ سارا صدقہ حضور کا ہے، یہ سارا کرم میرے حضور کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مدینے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، مولا مکہ کو برکت عطا فرما، اور آپ جا کر دیکھیں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں۔ زمزم کیسے جاری ہے، جس کے ایک قطرے کو یہاں ترستے ہیں، اس زمزم کی وہاں بہاریں دیکھیں، لوگ وضو کر رہے ہیں زمزم کے ساتھ، کوئی بھی وہاں پر خالی دامان نہیں رہتا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اور قربان جائیں علم نشرح زبان والا وما ينطق عن الهوى، بول والا محبوب جب کہتا ہے کہ مولا ابراہیم نے مکہ کے لیے ایک گنا فضیلت کی دعا کی ہے، تو یا اللہ مدینہ کو مکہ سے 2 گنا فضیلت عطا فرما، 2 گنا نہیں، پھر آگے دعا اور بڑھا دے، فرمایا 3 گنا فضیلت عطا فرما، 3 گنا۔ اور کس وجہ سے؟ کہ میرے آقا کا روضہ مدینے، جب تک حضور مکے میں رہے مکہ کی شان بڑی رہی، اور جب حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ، وہاں عاشقوں نے کہا کہ مکہ میں عمرہ کرنا تھا وہ کر لیا، جس قدر اس قدم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، کہ عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں، کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ سبحان اللہ، مدینے کو اللہ تبارک تعالیٰ، قرآن بھی پڑھ کر دیکھیں تو مدینے کو اللہ پاک نے ہر جگہ فضیلت عطا فرمائی۔ کیوں؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مکہ میں ثواب اکٹھا ہوتا ہے، اور مدینہ میں حضور کے روضہ پاک پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر شفاعت میری واجب ہو گئی۔ اب جب حضور نے کہہ دیا تو اس میں کوئی شک نہ رہا کہ قیامت کے دن اگر مدینے کی زیارت ہے پلے میں تو پھر قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی پلے میں ہے انشاءاللہ ان کے صدقے سے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، مدینے سے پیار کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، اور جس کے سینے میں مدینے کی محبت نہیں ہے وہ لاکھ کعبے کے طواف کر لے، عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، زیارتیں کر لے، جب تک سینے میں مدینے کی محبت نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ باعث تیری نماز کو میرا سلام ہے، باعث تیری نماز کو میرا سلام ہے، کہ بے عشق
आले मुस्तफा इबादत हराम है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आल की मोहब्बत के बगैर ईमान इबादत मुकम्मल नहीं होती। तो हुजूर की शान तो बहुत आला है। जिनकी आल से प्यार है तो हुजूर से प्यार। इसलिए हुजूर ने फरमाया लोगों आरज़ू करो तो जीने की आरज़ू करो तो मदीने में आरज़ू करो, मरने की आरज़ू करो तो मदीने में मरने की आरज़ू करो। और फरमाते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ये उमवी खलीफों में, ये सल्तनत उस्मानिया के बाद उमवी खलीफा में गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि अगर किसी की मौत का वक्त करीब आए तो कोशिश करे अगर हो सके तो वो मदीने का कसरत कर ले, जैसे अंबिया ने किया और यहाँ के मज़ारात बने। और फरमाते खुद हदीस शरीफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जाते तो हुजूर दुआ फरमाते कि मौला मुझे मदीने से बाहर ना मौत देना, मदीने के अंदर मौत अता फरमा। क्यों? फरमाया कि मदीने वालों, जीना भी तुम्हारा जीना और मरना भी तुम्हारा मरना है। इसीलिए कुर्बान जाए सब सहाबा कराम की आरज़ू रही। अब सवाल पैदा होता है कि मदीने को ये शान, ये मुकाम, ये मंज़िलत और मदीने की जो जिस जगह पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार पाक है, जो रियाजुल जन्ना है, उसका शान, उसका मुकाम व मर्तबा ये इतना बुलंद क्यों है? हुजूर की निस्बत है। लेकिन याद रखें कि कुरान का उसूल है, तवज्जो करें, बात ना किया करें, तवज्जो करें। कुरान का उसूल है कि इंसान जिस मट्टी से निकलता है उसी मट्टी से में वापस जाता है। वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम व फ़ीहा नुईदुकुम तारतन उखरा। जिस मट्टी से निकाला गया उसी मट्टी में दोबारा आता है। तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर भी मानते हैं, बशर मट्टी से बना है। हम हुजूर को नूर भी मानते हैं। बड़ी प्यारी बात समझाने लगे, बहुत सारों ने पहले सुनी है और बहुत सारे नए साथी हैं, अपने ईमान को ताज़ा करें सुनकर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वजूद पाक है उसकी 3 हैसियतें हैं, एक बशरी, एक नूरी और एक हक़ी। ये इंशाल्लाह मैं मेराज की रात बयान करूंगी, 27 रजब को इंशाल्लाह। बशरी जब हुए तो बशरियत को फैज़ दे रहे हैं, जब नूरी हुए तो मिराज पर जाकर नूरियों को फैज़ दे रहे हैं। हाँ, इससे बढ़कर भी हुजूर का मुकाम है, जहाँ सिर्फ हुजूर की शाने हक़ानियत ज़ाहिर होती है। जब नूरानियत से आगे, सिदरतुल मुंतहा से भी आगे, अर्श उला से भी आगे, काबा कौसैन औ अदना उसकी मंजिलों से भी आगे मेरे आका जाते हैं तो फिर रब्बे कौनैन, रब्बे करीम, रब्बे हक नुमा, वो रब्बे करीम के सामने जलवों में सामने होते हैं तो वहाँ हुजूर की सिर्फ शान हक़ानियत ज़ाहिर होती है, सिर्फ शान हक़ानियत, हक के साथ हक वासी होता है। यहाँ ना बशरियत है ना नूरानियत है, सिर्फ एक शान है, वो शान हक़ानियत है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत बनाना भी बशर था, तवज्जो करें, बनाना भी बशर था और बनाना भी नूर का पैकर था। तो फिर सिलसिला कैसे जुड़ा? हुजूर के रोज़े पाक पर जब जाते हैं ना तो के दरमियान कहाँ, जहाँ 2 नफल पढ़ते हैं, जहाँ 2 नफल, और वो 2 नफल आपकी शफाअत के ज़ामिन बन जाते हैं। कितनी मोहतरम जगह, और अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है वहाँ पर जाना, वहाँ पर जाकर ऐप बनानी पड़ती है, कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत अच्छा हो गया है, हमारे जैसे गुनाहगारों सियाहकारों को इतनी आसानी से इतनी अहम और इतनी मोहतरम जगह पर ये रसाई हो जाए, ये अच्छा है। पहरेदारों ने कुछ पहरे लगा दिए, हमें अपनी औकात का पता चल जाए कि ये बहुत ऊंचा मुकाम है, ये बहुत आला। यहाँ फरिश्ते आते हैं, यहाँ रब का वो ताजदार, वो महबूब खुदा है जो अर्श उला पर जाए तो अर्श उसके कदमों के तलवों के, जूते के तलवों के नीचे लगी मट्टी के बोझ से लेता है। तो जहाँ पूरा वजूद अतहर है उस मुकाम का आलम क्या होगा। इसलिए पर हुजूर के रोज़े पाक पर लिखा है जो रियाजुल जन्ना है ना, वो नूर है, याद रखिए, वो नूर का टुकड़ा है। क्यों? इसलिए कि वो जन्नत से आया हुआ टुकड़ा है।
जन्नत से आया हुआ है। और जमीन का वो हिस्सा जो रियाजुल जन्ना है, ये जमीन का के अंदर तो है लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये किसका टुकड़ा? ये जन्नत का टुकड़ा है। और जनाब बहुत बड़े आलिम दीन शरफुल मुस्तफा इमाम नेशापुरी वो फरमाते हैं कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत, बशर बनकर हुजूर ने, चूंकि इंसान बनकर आना था, बशर बनकर आना था हमारे लिए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूदे बशरी का जब पैकर बनाने का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल अमीन को जमीन पर भेजा और फरमाया जिब्राइल जमीन से मट्टी लेकर आओ जिससे हुजूर का पैकर बशरी बनेगा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया मौला हुजूर का पैकर बशरी बनाने के लिए मट्टी कहाँ से लानी है? तो सुने अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नी खालिकुन बशरन, इन्नी खालिकुन, हालांकि हुजूर को नूर भी फरमाया अजाब मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, हुजूर को नूर भी कुरान में कहा। कितनी आयात है। और यहाँ जब पैकर बशरी बनना है तो यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है इन्नी खालिकुन बशरन, बनाने वाला हूँ एक बशर मिन सलसाल मिन हमाई मसनून, मट्टी से, बाकायदा तौर पर मट्टी की किस्मों का नाम लिया और मट्टी से बनाने वाला। बोला ऐसी मट्टी कहाँ से आई जहाँ से तेरा यार बन जाए? कहाँ से आई? तो रब्बे करीम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन से फरमाया फला जगह पे जाओ। जब जिब्राइल अमीन जमीन पर आए तो जिब्राइल अमीन जब तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक तआला ने आपके आने से पहले जन्नत का एक टुकड़ा रियाजुल जन्ना में भेज दिया। आपने वहां से मट्टी उठाई। अब बताइए जन्नत नूर है? बताइए जन्नत नूर है कि नहीं है? जन्नत नूर है। तो जन्नत से आने वाला टुकड़ा क्या हुआ? वो नूर है। और जन्नत को बनाने वाला मुस्तफा है। जन्नत नूर हुई तो मेरा मुस्तफा नूर नहीं हुआ, वो मुनव्वर हुआ और सिराजम मुनीरा हो गया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह। सोनिया तुझे चमकाने वाला, चमकता हुआ सूरज बना के भेजा है। ऐसा सूरज जो कभी भी गुरूब, सूरज की ये आप ऐसे देखते हैं गुरूब नहीं होता, कहीं और जाके चमक रहा होता है। सूरज की शान नहीं, चांद सूरज से रोशनी लेता है लेकिन सूरज की अपनी रोशनी है। ये साइंटिफिक व्यू पॉइंट से साइंसदानों से पूछे, अपनी रोशनी है, रोशनी में किसी का मोहताज नहीं। इसीलिए फरमाया सिराजम, और सिराज कह देना ही काफी था, साथ फरमा दिया मुनीरा, ऐसा चमकता सूरज की जो कभी भी ढलता नहीं है। इसीलिए फरमा दिया जिब्राइल अमीन जमीन पर तशरीफ लाए, मट्टी ले गए, इसलिए फरमा दिया कि जन्नत, सारी जन्नत, जन्नत का जर्रा जर्रा नूर, जन्नत के पत्ते नूर, बागात नूर, नूरे नूर, गिलमा नूर, चश्मे नूर, मैदान, पत्थर, मट्टी, हर शय नूर है। तो जो जिस पैकर से हुजूर को बनाया वो पैकर भी नूर है। अल्लाह पाक ने भेजा ना कि हो भी मट्टी और हो भी नूर, मट्टी भी हो और मट्टी ना भी हो भी नूर, जिससे पैकर बनाया जाए कि शुमार भी मट्टी में हो जाए लेकिन पैकर भी नूर का बन जाए। कुर्बान जाए, कौन समझ सकता है हुजूर की शान को? ये वो शान अक़दस है। हुजूर ने फरमाया मेरी शान को, मेरी फरमाया वफ़ीहा नुईदुकुम तारतन उख़रा। जब दफनाया गया मिज़ार अनवर बना, क्योंकि इसी मिट्टी से बने थे इसलिए वापस इसी में आना था। इसलिए इस मदीने को इसलिए फजीलत है कि जिसकी शान, जिसका मुकाम और मर्तबा खुदा के अर्श उला से भी आला है। इसलिए फरमा दिया कि ये मदीना है, यहाँ आहिस्ता चल, हाजिरी में है मलक 70,000, हाजिरी में है मलक 70,000। अगर सुबह जाए तो फिर भी 70,000, अगर रात को जाए फिर भी 70,000। इसलिए कुदसियों के दरमियां आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ज़ाहिरे हुए जिना आहिस्ता चल। महबूब के दर पर कोशिश ये कि जब इतनी शान, इतना मुकाम रब ने मदीने को अता फरमाया, हमारी बख्शिश का सामान बनाया, तो फिर मदीने में हाजिरी। मदीने यूं तो सब जाते हैं लेकिन मदीना देखता है कोई कोई, गरीब मुस्तफा है कोई कोई, मजे ये लूटता है कोई कोई। मेरे आका हर एक को उसके मुकाम मर्तबा को देख कर नहीं अपनी शान से अता फरमा देते हैं।
जिथे मैं कोई जी किथे वसोना किथे मेरी अखियां जा लगियां मैंने दियो मुबारक सही होनी मैंने रंगता इश्क दियां चढ़ियां। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए, हम सब पे ये फैजान जारी फरमाए कि हम भी हुजूर के दर अनवर की हाजिरी की मुबारक इकट्ठी करें और फिर हुजूर के कदमों में खुजू खुशू सब एहतराम के साथ इंतहाई सुकून के साथ कि वहाँ जुबान नहीं बोलती, वहाँ आंसू बोलते हैं, आंसुओं को जुबान मिलती है। हुजूर दिल के अहवाल खुद ही जान लेते हैं। और किसी आशिक ने यूं ही फरते तरफ में फरते मुसरत में कहा था ये लबाते मोरा लगियां बोलन दी जाच भूल गई ओ थे जुबान ताई खोलन दी जाच भूल गई जाके मदीने अथरू जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए कदमानो चुमिया जिनाने हीरे ते लाल सुभान अल्लाह कदमानो चुमिया जिनाने हीरे ते लाल सोने दे दर्द मंगते सोने दे दर्द मंगते जग दे सुल्तान बन गए कदमानो चुमिया जिनाने हीरे ते लाल बन गए हुस्नी कमाल को शानी जमाल को मंगिया ये फैज जिनाने सोहने लजपाल को मंगिया ये फैज जिनाने सोहने लजपाल को ओ भी लजपाल बन गए ओ भी लजपाल बन गए ओ भी सुल्तान बन गए ओ भी लजपाल बन गए ओ भी सुल्तान बन गए कदमानो चुमिया जिनाने हीरे ते लाल बन कदमानो चुमिया जिनाने हीरे ते लाल क्योंकि लजपाल प्रीता तोड़ते नहीं ओ जिदी मां फड़ दे फिर छोड़ते नहीं एक सोनिया तेरी निस्बत ने ओ मैनू होर दी हो रे बड़ा छड़े मैनू होर दी होर बड़ा छड़िया मैनू होर दी होर बड़ा छड़िया अल्लाह ताला